Well, hello students. Now we're going to see this question. The question says that in an experiment, brass and steel wires of length 1 meter each with areas of cross section 1 millimeter square are used. Okay, the wires are connected in series. Okay, and one end of the combined wire is connected to a rigid support and another end is subjected to an elongation. Okay, the stress required to produce the net elongation of 0.2 millimeters uh, is what? Okay, so the Young's modulus for steel and brass are given over here, 120 into 10 to the power 9 Newton per meter square and 60 into 10 to the power 9 Newton per meter square. So firstly what we'll do, we have to find K, okay, which is the force constant. So K1 will be equal to Young's modulus Y into A area divided by L1, okay, which is the length of wire 1. Both the wires are of same length, so wire means gamma will be equal to basically Young's modulus. We can take any one, so let's take 120 first. 120 into 10 to the power 9, okay, into area. We'll leave it just like this because at last it will be required, and so we will not do anything to that area, not put any value, so we'll get 1. So what we are going to get from here, we are going to get 120 into 10 to the power 9 A. Okay, so this A we are leaving it like this only. I'll explain you why, okay, afterwards. So you will get to know why I left that A, because A is basically not required at all. So gamma A by L2, okay, gamma is also different over here, so I'll write gamma 1 over here and gamma 2 over here. So what we have gamma 2 over here, we have gamma 2 as 60 into 10 to the power 9 into A divided by 1, which will give us the value 60 into 10 to the power 9A. Okay, so now what we need to do, since they are connected in series, so we will use the concept of series spring, okay, to find the equivalent K equivalent. Okay, so by the formula what we have, K equivalent will be equal to K1 into K2 divided by K1 plus K2. Okay, this is the formula. So K1 into K2 is what? Basically 12 times 6 is what? 12 times 5 is 60. So 12 times 6 is 72. And there are this 10 over here and 10 over here. So we will put 2 zeros over here into 10 to the power 9 into 10 to the power 9. We are leaving it like this because there is a reason that they will get cancelled, and we'll leave a square over here. Okay, divided by basically K1 plus K2 is basically 120 into 10 to the power 9. Okay, so I'm showing you how we'll add these things into 10 to the power 9A plus 60 into 10 to the power 9A. Okay, so now what we're going to do, we have to calculate this big equation. So it is quite easy, 7200 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 into A square. So let's write it as A into A. Okay, for easier thing, so that we can cancel it also. So now we can take A and 10 to the power 9 common from here. So what we'll have, basically 10 to the power 9 into A, okay, and basically we will have left 120 plus 60. Okay, and basically we'll cancel these two quantities from the up equation. So these two will be cancelled from this 1A and 1 this 10 to the power 9. So what we're going to be left with, we are going to be left with only simply 7200, okay, into 10 to the power 9 into A divided by 180. Okay, so if we divide it by 180, we'll be finally getting 40 into 10 to the power 9. Okay, 40 into 10 to the power 9 in A. Okay, so basically we are leaving it like that only. So firstly now we are going to use that formula, that is force is equal to K equivalent into X. Okay, so over here X is the elongation. Okay, I am writing it in different things so that you don't get confused. So F is equal to K equivalent plus X. Okay, so basically F is force, okay, and X is basically elongation, total elongation. Okay, so total elongation we have been given. Okay, so force is basically equal to what? Force is, we will leave it like that only, and K equivalent will write 40 into 10 to the power 9. Okay, and we will
put it in bracket and leave a outside, okay, into x. What was x in the question given? In the question the x was given 0.2 millimeters, so we have to convert it into meters. So 0.2 into 10 to the power minus 3 meters, okay. So basically this will be what it is, okay. So 10 to the power minus 3 meters. So I'm dividing this line so that you don't get confused. So what we're gonna get from here, so we'll bring this area down, okay. F by a, okay, we will have over here F by a will be equal to, now we will multiply it. So what we're gonna get basically, if we take this 2 off, we will get a, means take this point off, we will get a -4 quantity over here. So we will have a 10 to the power 5, okay. And basically let's not go there, let's just simply put 10 to the power 6 only, because there is a 40 over here. So we will have 8 into 10 to the power 6. So basically this is our answer. Why? Because stress, we know stress, the formula of stress is basically what? Stress is equal to F by A. So basically we found F by A is equal to 10 to the power 6 into 8. Okay. So our answer will be option number C. Okay. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन कह रहा है कि यंग्स मॉड्यूलाई ऑफ 2 वायर ए एंड बी, उनका रेशियो दे रखा है 7:4 का, और बोल रखा कि वायर जो ए वायर है उसका जो लेंथ दे रखा है वो 2 मीटर का है और इसका रेडियस आर है, और जो बी वायर है उसका लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर और इसका रेडियस है आपका 2 मिलीमीटर. ठीक है. और आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ द 2 वायर स्ट्रेचेज बाय द सेम लेंथ. ठीक है, दोनों वायर को सेम लेंथ से स्ट्रेच किया जा रहा है फॉर अ गिवन लोड. तो बोला जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू, ये जो आर आपका दे रखा है ना यहाँ पे, इस आर का वैल्यू आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है. तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपका बेसिकली आपके 2 वायर दे रखे हैं. ठीक है. और मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में ये हमारा एक वायर यहाँ पे है. स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ कि एक वायर हमारा यहाँ पे है. ठीक है, एक छोटा सा वायर है. ठीक है, एक वायर हमारा यहाँ पे है और एक और जो दूसरा वायर है, ये इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे. एक और जो दूसरा वायर है हमारा, ये हमारा एक यहाँ पे है. ठीक है. और अब इसमें पॉइंट क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि बोल रखा है कि जो वायर, इसको मैं बोलता हूँ वायर नंबर ए है और ए बी है. ठीक है. और ए और बी का जो यंग्स मॉडुलस है उसका अगर मैं बोल देता हूँ कि इसका यंग्स मॉडुलस वाई ए है और इसका यंग्स मॉडुलस वाई बी है, तो वाई ए बाई वाई बी का जो रेशियो दे रखा है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारा दे रखा है 7:4. ओके. एंड वायर ए जो है, ए जो वायर है इसका लेंथ आपका दे रखा है 2 मीटर का है ना. तो ए जो वायर है इसका लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ अगर बात करेंगे ए का, तो ये आपका कितना दे रखा है, तो ये आपका है 2 मीटर बराबर है. ठीक है, 2 मीटर के बराबर है. ओके. एंड अगर बी वाले के लिए बात करेंगे तो बी वाले का जो आपका लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ द बी जो है वो हमारा है 1.5 मीटर. ठीक है, 1.5 मीटर लॉन्ग है. एंड इसका जो रेडियस दे रखा है, जो वायर है इसका रेडियस दे रखा है हमारा कितना, इसका रेडियस दे रखा है आपका 2 mm का है. ठीक है. और आपका इसका रेडियस को आर दे रखा है और ये आर का वैल्यू क्या होगा यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. ठीक है. और एक और पॉइंट दे रखा है कि दोनों को स्ट्रेच सेम लेंथ से किया गया, मतलब इसमें जो डेल्टा एल का वैल्यू है वही डेल्टा एल का वैल्यू इस वाले के केस में भी है. ठीक है. अब बात आती है, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा कि स्ट्रेस जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. वहां से हमारा एक रिलेशन आता है कि जो फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो आपका बराबर आता है यंग्स मॉडुलस एंड डेल्टा एल, जो स्ट्रेच किया जाता है लेंथ में, एंड ओरिजिनल लेंथ के बराबर. ठीक है. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे चेंजिंग किस में आ रही है, तो एक आपका रेडियस में चेंजिंग आ रहा है और एक आपका लेंथ में चेंजिंग आ रहा है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से अगर बात करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ से बेसिकली क्या कह सकते हैं कि आपका जो डेल्टा एल जो है वो दोनों के लिए सेम है. ठीक है, डेल्टा एल जो है वो आपका क्या है, सेम है दोनों के लिए, फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए डेल्टा एल का वैल्यू क्या है, वो बराबर है. तो अब यहाँ से हम लोग अगर डेल्टा एल को फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा एल हमारा क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एल जो है वो हमारा आ जाएगा फोर्स और इनटू का लेंथ एंड डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा यंग्स मॉडुलस और हमारा आ जाएगा एरिया. ओके. अब अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा कि गिवन लोड आपका दोनों में बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फोर्स भी हमारा बराबर ही होगा. तो जो हमारा डेल्टा एल है वो आपका बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ एंड आपका हो जाएगा एरिया और यंग्स मॉडुलस के ना. ठीक है. तो अगर बात करेंगे फर्स्ट वाले वायर के लिए, तो फर्स्ट वाले वायर का लेंथ अगर एल ए मानो और अगर उसका एरिया फर्स्ट वाले का ए मानो
और उसका यंग्स मॉडुलस y ये मानूं, ये आपका बराबर होगा लेंथ जो सेकंड वाले का है और एरिया जो सेकंड वाले का है और यंग्स मॉडुलस जो सेकंड वाले का है, ठीक है। अब बात आती है कि एरिया को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इस एरिया को क्या लिख सकता हूँ, लेंथ को तो एज इट इज छोड़ देते हैं और जो एरिया लिखा गया है ए वाले का, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई और इसका रेडियस ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, ए वाले का रेडियस का स्क्वायर, ओके। एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द बी एंड एरिया जो बी का होगा हमारा जाएगा पाई इंटू का रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर एंड हमारा आ जाएगा यंग्स मॉडुलस बी, ठीक है। यहाँ से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे होगा क्या कि आपका रेडियस दे रखा है, रेडियस पूछा गया ए वाले का, ठीक है। ए वाले का अगर रेडियस बोला गया है, मतलब आर ए का रेडियस बोला गया ना, आर ए का अगर रेडियस बोला गया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आर ए स्क्वायर बेसिकली आर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए का रेडियस आपका आर दे रखा है ना। तो आर ए स्क्वायर जो हमारा यहाँ से आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा लेंथ ऑफ द ए एंड रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एक वाई ए बच गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ ए एंड हमारा एक और टर्म बचेगा एल बी, यहाँ पे आ जाएगा ना, नीचे हमारा आ जाएगा एल बी, लेंथ ऑफ द बी, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो वैल्यू है उस वैल्यू को एक्चुअली में पुट कर लेंगे, तो जो हमारा आर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा ना, आपका अंडर रूट आ जाएगा किसके बराबर, तो लेंथ ऑफ द ए एंड रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द बी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ए, ओके। अब ए का लेंथ कितना दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ए का जो लेंथ दे रखा है वो हमारा है 2 और बी का लेंथ है 1.5, ठीक है। तो ए का लेंथ हमारा दे रखा है 2 एंड बी का लेंथ है हमारा 1.5, ए का लेंथ 2 ही है ना, ए का लेंथ है हमारा 2, हाँ ठीक है, ए का लेंथ है 2 और बी का है 1.5 और वाई ए बाई वाई बी का जो रेशियो दे रखा है वो 7/4 है, वाई ए बाई वाई बी दे रखा है, ये जो वाई ए बाई वाई बी तो 7/4 है, तो ये आपका रेसिप्रोकल है, तो आपका 4/7 हो जाएगा, ओके। एंड रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, जो बी का जो रेडियस है उसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बी का रेडियस है वो 2 मिलीमीटर है, इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 और इंटू का हमारा आ जाएगा 10⁻⁻6, ओके। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वैल्यू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा बेसिकली 1.7 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। बेसिकली ये आएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा और अगर इसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 1.7 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन से बात करेंगे, खैर इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, तो हमारा जो आर का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, तो ये 1.7 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। Hello, the question is a wire having a radius of 2 mm carrying a load of 4 kg is hanging from a ceiling. Given G is equal to 3.15 meter per second square, what will be the tensile stress that would be developed in the wire? So we have to find a tensile stress. You know, we have given radius as 2 mm. It means I can write radius 2 mm. What we have also given, we have given mass, that is 4 kg. Fine. We know the formula of stress. What is stress? Stress is defined as force per unit area. Force per unit area. I can also write force as what? Load upon area. Fine. What will be the load here? Load will be equal to mass into g, that is mg, upon area. Area is in the form of what? Circular. That is pi r square. Now we have to put the values of all of this. We will be getting our answer. Mass is 4. G is what? G is given at 3.15 meter per second square divided by pi r square. R is what? 2 into 2. But it is given into millimeter. So I have converted into meter. It means it is 10 is to power minus 3 into 10 is to power minus 3. Pi getting cancelled out. If I solve it, we will be getting tensile stress side.
टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू 3.1 into 10⁶ Newton per meter square. This is the value of tensile stress developed in the wire. I hope you have got your answer. Thank you. We are going to discuss a problem of JEE Main Physics exam. Question हमारे पास है a load of mass m is suspended from a steel wire of length 2 meter and radius 1 mm in Searles apparatus experiment. ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि एक स्टील वायर है इस तरह से, और इस स्टील वायर से एक लोड को सस्पेंड किया गया है. ठीक है, इसको फ्री लटकाया गया है, यहाँ से m मास है. अब वायर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. लेंथ ऑफ वायर है 2 मीटर और रेडियस ऑफ वायर है 1 मिलीमीटर 1 mm. ठीक है, द इंक्रीज इन लेंथ प्रोड्यूस इन द वायर इज 4 mm. तो इस कंडीशन में जब टेंशन इधर लग रही होगी, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली इस वायर को इलोंगेट करने की कोशिश कर रही होगी और इसका लोड इधर नीचे लग रहा होगा mg. ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे, वायर को खींचने की कोशिश करेंगे. तो इस कंडीशन में जो वायर में elongation है वो डेल्टा एल, उसको मैं बोल देता हूँ 4 mm विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ द लोड इज फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 2. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको गिवन है 2 एंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ लोड इज 8. तो रिलेटिव डेंसिटी जिसको मैं बोलता हूँ रो एम, मास जो हमारे पास है उसका रिलेटिव डेंसिटी है 8. आपको बोला गया है द न्यू वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज. जब इस पूरे अपैरेटस को मैं पानी में डुबा दूं तो उसके बाद इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, न्यू इंक्रीज पूछा गया है आपसे. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही किसी भी आप लोड को किसी लिक्विड में ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बॉयंसी फोर्स का जन्म हो जाता है. उसी टाइम पे बॉयंसी फोर्स वहाँ लगने लग जाता है. ठीक है, लेट अस से ये मास m है, पानी में डूबा हुआ है. ठीक है, ऊपर ऐसे के ऐसे ही टेंशन लग रही थी, नीचे mg लग रहा है. ठीक है, लेकिन जैसे इसको लिक्विड में डुबा दिया है तो लिक्विड भी इसके ऊपर पुश फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलते हैं FB, फोर्स ऑफ बॉयंसी. ठीक है, अब क्या हो गया इस कंडीशन में, जब पहले प्रीवियस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो जो टेंशन है वो किसके द्वारा बैलेंस की जा रही है, mg के द्वारा. ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T इज इक्वल्स टू mg. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देता हूँ, और दूसरी इक्वेशन जो होगी मेरी वो बनेगी T इज इक्वल्स टू mg माइनस FB, बायंसी फोर्स. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब मुझे एक बात पता है, जो ये है कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. ठीक है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, यही होता है. ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे फोर्स का काम कर रहा है वायर के लिए टेंशन. ठीक है, टेंशन की वजह से एलोंगेशन आ रहा है. फोर्स वो होता है जो एलोंगेट कर रहा है, तो ये टेंशन की वजह से आ रहा है. तो भाई पहले केस में टेंशन की वैल्यू है mg. ठीक है, दूसरे केस में टेंशन की वैल्यू है mg माइनस FB. तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि टेंशन जो होगी वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी एलोंगेशन के. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का. नाउ आई कैन राइट इट दिस एक्सप्रेशन एज T इज इक्वल्स टू mg माइनस m बाय रो m मल्टीप्लाइड बाय रो l इंटू g. ठीक है, बायंसी फोर्स को लिखा जा सकता है. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटीज के टर्म्स में. तो अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं. mg की वैल्यू लिखते हैं कॉमन लेके 1 माइनस रो एल बाय रो एम. अब रो एल और रो एम की हमें वैल्यूज गिवन है जो क्या है, mg मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रो एल की वैल्यू है 2, यानी कि जो लिक्विड है उसकी रिलेटिव डेंसिटी और जो मटेरियल है उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 8. ठीक है, तो इट बिकम्स 1 माइनस 1 बाई 4. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा mg टाइम्स 3/4. ठीक है, mg टाइम्स 3/4 हो गया. ओके, तो अब आगे हम देखते हैं कि जो mg है, ठीक है, यानी कि t डैश जो है, t डैश है नया टेंशन जो वायर में आएगा, इसको मैं t डैश नाम दे देता हूँ. ठीक है, तो t डैश की वैल्यू आपके पास आ रही है mg इंटू t डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3/4 टाइम्स mg. ओके, ठीक है, तो
टेंशन की वैल्यू निकालने के बाद हम इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमें पता है पुराना टेंशन है उसकी वैल्यू है mg, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3/4 टाइम्स पुराना टेंशन, ठीक है। तो टेंशन की जो वैल्यू का रेशियो आएगा नई टेंशन डिवाइडेड बाय पुरानी टेंशन, वो आ जाएगा 3/4, ठीक है। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 हम बोल देते हैं। अब मैंने इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी थी कि टेंशन जो है वो क्या होगी, एलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होगी, या एलोंगेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से टी डैश बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डैश बाई डेल्टा एल, ओके। तो डेल्टा टी डैश बाई टी की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ इसकी जगह 3/4। तो डेल्टा एल डैश जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। डेल्टा एल है पुराना इलोंगेशन जब वो लिक्विड में नहीं इमर्ज था हमारा सिस्टम, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 टाइम्स 4। डेल्टा एल जो इलोंगेशन था पुराना वो कितना था, 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो 4 मिलीमीटर था, तो 4 मिलीमीटर की इस वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 mm आपके पास आ जाएगा नया जो एलोंगेशन होगा वायर में, वायर को पानी में जाने के बाद, ठीक है। तो 3 mm इज द करेक्ट आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। सो 3 mm is going to be correct answer. In this question a solid sphere of radius r, okay, कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस क्या है r, मेड ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है उसका बल्क मॉडुलस हमारे पास कितना दिया हुआ है, कैपिटल K दिया हुआ है, ओके। सराउंडेड बाय ए लिक्विड ऑफ सिलेंडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सराउंडेड बाय किसी लिक्विड से सराउंडेड है किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में। ए मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, कोई मासलेस पिस्टन है जिसकी एरिया कितनी है, कैपिटल ए है। फ्लोट्स ऑन अ लिक्विड सरफेस व्हेन मास m इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन, जब वो फ्लोट कर रही है, जब सरफेस की एरिया कितनी है a। करेक्ट कि व्हेन ए मास m इज प्लेस्ड ऑन द piston compress the liquid of frictional change in the radius of the sphere। करेक्ट कि जब एक मास को हम क्या करें, कोई मास m है उसको प्लेस्ड करते रहे पिस्टन पे, तो यहाँ पे क्या होने लग रहा है, कंप्रेशन होने लग रहा है, ओके। पिस्टन से क्या होने लग रहा है, कंप्रेशन होने लग रहा है लिक्विड पे। तो फ्रैक्शनल चेंज होगा जो रेडियस ऑफ स्फीयर पे, डेल आर अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ओके। तो लेट्स डू दिस, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बल्क मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो बल्क मॉडुलस के इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि ये क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे साइड में चेंज हो रहा है इसलिए हमारा यहाँ ये साइन क्या लिया गया, नेगेटिव लिया गया है, ओके। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, जनरली प्रेशर हमारा क्या होता है, चेंज इन प्रेशर यहाँ बात किया गया, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, प्रेशर की वजह से लग रहा है, और उसका मास कितना है m, फोर्स क्या लग रहा है mg, और उसकी एरिया कितनी है a। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया प्रेशर का। और चेंज इन वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अगर इस डेल्टा p की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ अपने इस इक्वेशन में, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर इसमें मैं पुट कर दूंगा तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी को मैंने ऊपर लाया, और ये क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन ए इंटू के, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी हमारा चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है हमारा, माइनस साइन बाहर आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ओके, अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एम जी अपॉन ए इंटू के। तो अब यहाँ से माइनस जो है बाहर, उसको क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपॉन वी इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन ए इंटू के, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है इसको उसके टर्म में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी ये क्या क्या आ जाएंगी, हम उनको एज्यूम यहाँ पर एज्यूम कर देते हैं कि प्रेशर लगाने के बाद या फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके रेडियस में क्या हो रहा है, डेल आर का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो रेडियस उसका आर है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, माइनस 4/3 पाई, अब ब्रैकेट में मैं क्या कर लेता हूँ कि रेडियस जो श्रिंक हो गया उसकी वैल्यू मान लिया कि डेल आर से सिंक हो गया, तो डेल आर से सिंक हो गया तो डेल आर का होल क्यूब अपॉन में ये आ जाएगा क्या, 4/3
पाई आर क्यूब। ओके, और ये हमारा ये जो v है ये भी क्या है, इनिशियल ही है। ओके, इनिशियल को ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन a इंटू के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 4/3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा आर क्यूब माइनस, यहाँ क्या है, ये क्यूब है, इसका क्यूब कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आर क्यूब माइनस 3r² डेल आर। ओके, बाकी और सारे टर्म्स को हम क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। क्यों नेगलेक्ट किए, क्योंकि डेल आर बहुत छोटी क्वांटिटी है, और उसके साथ अगर हम क्या करेंगे, आर का मल्टीपल भी लेंगे तो वो क्या होगा, डेल आर का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, और वो वैल्यूज़ क्या होगी, काफ़ी स्मॉल हो जाएगी। तो उसको क्या किया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है। ये वैल्यू हो गई हमारी, ये टोटल अपॉन में क्या है, आर क्यूब के इक्वल है, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, mg अपॉन a इंटू के। ओके, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 डेल आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू mg बाई a k। ओके, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें डेल आर अपॉन आर ही निकालना था। डेल आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन 3ak। ओके, तो यही हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, Hello everyone, so our question is, a pendulum made of uniform wire of cross-sectional area A has time t. When an additional mass m is added to its bob, the time period changes to tm. If the Young's modulus of the material of the wire is y, then 1 by y is equal to. Okay, so in the given question we have been given that a pendulum made of a uniform wire, let us suppose this is our pendulum made of uniform wire having cross-sectional area A. Okay, and its Young's modulus as y and length as L. Okay, now the time period initially was 2 pi under root L by G. Correct. Now in the given question we have been said that an additional mass of m is added to this bob. Correct. Now due to this additional mass, the stress in the wire will be equals to sigma is equals to mg upon a. Correct. And the strain will be the change in length upon original length. So from here what we can say that our change in length will be strain into the original length. Correct. And the time period after the addition of the extra mass capital M is given as Tm will be equals to 2 pi under root final length after the extension 2 pi under root the final length upon G, and the final length can be written as under root of initial length plus the change in the length divided by G. Correct. Now delta L we have calculated as strain into L. Correct. So Tm will come out to be 2 pi under root of L plus strain into original length divided by G. Correct. Now taking L common from here, what we get is 2 pi under root of L by G into under root of 1 plus epsilon. Correct. So what we can say that the expression 2 pi under root L by G is the initial time period of the pendulum before the addition of the extra mass. Correct. So what we can say that Tm will be equals to T into under root of 1 plus epsilon. Correct. So Tm by T will be equals to under root of 1 plus epsilon. Now squaring both sides, so Tm by T whole square will be equals to 1 plus epsilon. Correct. Now the strain is given as stress upon Young's modulus. Correct. So it will be Tm upon T whole square is equals to 1 plus stress upon Young's modulus. Correct. So from here we get 1 upon Young's modulus y as Tm upon T whole square
minus 1 into 1 upon stress. And stress due to the extra mass we have calculated as mg by a. Correct? mg by a. So substitute the value over here. So what we get as 1 by Young's modulus is equals to Tm upon T whole square minus 1 into A upon mg. Correct? Now checking out the options, what we get is Tm upon T whole square A upon mg, that is option number 4. Correct? Option number 4 over here, Tm upon T whole square minus 1 into A upon mg is the correct option. Correct? Thank you. The question says one end of a horizontal thick copper wire of length 2L and radius 2R is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length capital L and radius capital R. When the arrangement is stretched by applying forces at the two ends, the ratio of elongation in the thin wire to that of the thick wire is option 1 0.25, option 2 0.5, option 3 2 and option 4 4. So we have a thick copper wire, let's denote it as wire 1, and it has radius 2R, therefore its diameter is 4R and its length is 2L. And its one end is connected to a thin copper wire of length L and radius R. Let that wire be called wire 2. So this arrangement is stretched by applying force at the two ends. Let the force be denoted as F. Since the wires are connected in series, the force applied to both the wires is equal to F. And if we find the deflection or the elongation of wire 1, then we know that the change in length is given by the formula FL by AY, where F is the force applied, L is the length of the wire, A is the area of cross section of the wire, and Y is the Young's modulus. So for the first wire, that is the thick one, which has a radius of 2R and length 2L, the elongation denoted as delta L1 will be equal to force F into length 2L divided by area, which is pi into 2R whole square into Young's modulus Y. Also, since both wires are made of copper, therefore the Young's modulus will be the same. For wire 2, the elongation will be denoted as delta L2 and it is equal to F into length L divided by area, which is pi r square into Young's modulus Y. We need to find the ratio of elongation of thin wire to the thick wire. This means we need the ratio delta L2 divided by delta L1. Inserting values, we have FL by pi r square Y divided by 2FL divided by 4 pi r square into Y. FL can be cancelled and pi r square Y can also be cancelled. So we have 4 by 2. Therefore, the ratio of elongation of thin wire to the thick wire is equal to 2. 2 is given in option 3, therefore option 3 is the correct answer.